Good afternoon to everyone. We are starting today with management accounting, and in management accounting, as I have told you, it helps the management to take decision. So management accounting is it is in a way different than financial accounting. In financial accounting, you have to understand about debit credit, but in management accounting, it is very easy. Management accounting has a format of balance sheet and profit and loss account. So in this chapter, what we will do in this chapter, what we will do first, before going to the format, let me tell you what we will be doing. We will be doing vertical balance sheet, which I will start today, and we will be doing vertical revenue or income statement. This is nothing but your trading and profit and loss. This is your trading and profit and loss. Profit and loss account, which is called revenue or income statement. आप इसको revenue statement भी बोल सकते हो, आप इसको income statement भी बोल सकते हो. Now everything is in vertical form. Till today, till now, you all have done the balance sheet, trading profit and loss account in the horizontal format, in the T format. But today, now we will be learning here the vertical format. So the vertical format is, this is new chapter which we are starting with management accounting. In the management accounting, we have already done with capital budgeting, and we have done with working capital statement, working capital management. Today we will be starting with analysis and interpretation of accounts. So to analyze and interpret. Analyze means to verify, and interpret, to understand the accounts. We have to understand the format. See, the accounts are given in balance sheet is given in horizontal. We have to convert it into vertical. But तुम लोग को अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पूरा जाएंगे, because very limited time is left out. So you will not be having you in the exam, you do not have to convert. Normally हम लोग क्या करते हैं, हमें horizontal balance sheet दिया रहेगा तो उसे हम convert करते हैं vertical form में. तो हम लोग को ऐसा full fledged questions तो आने वाला नहीं है, because it will be small questions in the exam. So, but we have to understand the format. So to understand the format, we have, कैसा रहेगा ये फॉर्मेट, आपको पर्टिकुलर्स दिया रहेगा और आपको 3 कॉलम्स है अमाउंट के लिए. तो बैलेंस शीट को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है. सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स. क्या बोलते हैं? Sources of fund. And this for balance sheet is prepared for the company. This balance sheet is prepared for the company. And company को क्या sources है fund का? Sources means from where the company will get the funds. What are the sources of fund from where the company will get the money to run the business? कंपनी को पैसे कहाँ से आते हैं? सबसे पहले जिसको हम लोग बोलते हैं, what do we call it as? We call it as owned fund. We call it as owned fund. owned fund को हम shareholders fund भी बोलते हैं, क्योंकि कंपनी में ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर्स फंड को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं. यही फॉर्मेट के हम ये फॉर्मेट को में जो फंड ओनर्स का फंड है उसको ओन्ड फंड भी बोल सकते हैं, ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं, नेट वर्थ भी बोल सकते हैं.
तो इसको, और वी में ऑल्सो कॉल इट एज ओनर्स फंड, वी में ऑल्सो कॉल इट एज ओनर्स फंड, ओनर्स फंड, ओन्ड फंड को ओनर्स फंड भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है शेयर कैपिटल। अब ओनर्स का फंड, ओनर्स क्या देते हैं बिजनेस को, कैपिटल देते हैं, तो वो कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। ओनर जो पैसा, कंपनी में ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स के पैसे को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, इट इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। ओनर्स का जो पैसा, एवरीवन आर अवेयर अबाउट इक्विटी शेयर कैपिटल, इट इज द परमानेंट शेयर ऑफ द कंपनी, तो इसको हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं, जिसमें क्या रिटर्न मिलता है। यस, वन मोर टाइप ऑफ कैपिटल इज देयर विच वी कॉल एज प्रेफरेंस share capital. There are two types of capital, equity share capital and preference share capital. So इसमें से हम क्या लेस करते हैं, अगर कोई कॉल्स इन एरियर्स हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर्स, मीन्स अगर कोई शेयर होल्डर ने शेयर का पैसा पे नहीं किया तो दैट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। तो दो टाइप का कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इसमें कोई कॉल्स इन एरियर रहेगा तो वो हम माइनस करेंगे और यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे, जैसे इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कोई कॉल्स इन एरियर्स दिया है, कॉल्स इन एरियर्स मीन्स व्हाट, द सम ऑफ द शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड द अमाउंट ऑफ शेयर, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी बोल सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन शेयर्स, शेयर का पैसा पे नहीं किया तो उसको हम लेस करेंगे। नाउ टेल मी, शेयर होल्डर का हक किन चीजों में होता है, शेयर होल्डर का राइट इज ऑन द शेयर कैपिटल, इफ दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स देयर राइट इज ऑन द इक्विटी शेयर कैपिटल, इफ दे आर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स द राइट इज ऑन द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट वन मोर थिंग, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनका हक एक और चीज में होता है जिसको हम बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या बोलते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर का हक रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब क्या, कैन यू ऑल गिव मी द एग्जांपल ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ऐसा कुछ भी आया तो हम लोग इसको बोलेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। उसके अलावा क्या है, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, जब भी शेयर या डिबेंचर कभी भी प्रीमियम में इशू होता है तो प्रीमियम के पैसे को हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर और क्या है, देन वी हैव कैपिटल रिडेम्पशन, किसमें भी कोई भी रिजर्व या फंड यूज किया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन, फंड भी बोल सकते हैं, रिजर्व भी बोल सकते हैं। See, this capital redemption reserve is created to repay the preference share capital after a particular period of time. preference share का पैसा वापस करना है तो वो पैसा हम कहाँ पे जमा करते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों क्रिएट करते हैं, हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर हम शेयर्स में करेंगे तो उसका वैल्यू तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा होता रहेगा। तो उससे बचने के लिए हम साइड बाय साइड
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं कि कल अगर हमें लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बहुत कम होने के वजह से, तो वो लॉस को रिकवर कहाँ से करेंगे, ये रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एक और रिजर्व है जिसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। डिबेंचर को डिबेंचर भी कुछ टाइम के बाद वापस करना होता है, तो उसको पैसा वापस करने के लिए हम कहाँ पे सेविंग करते हैं, सिंकिंग फंड में, या फिर एनी अदर फंड, कुछ भी फंड रहेगा तो यहाँ पे आएगा। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रिजर्व इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में मैं बोलूंगी क्रेडिट बैलेंस। जब भी क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। तो ये सबके वैल्यू को let us show here, 1 minute। ये सबको एक्स एक्सिस बोलेंगे, फॉर्मेट है तो अमाउंट नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद यहाँ पे ये शेयर कैपिटल का टोटल है, फिर ये टोटल है रिजर्व्स एंड सरप्लस का, ये टोटल है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। ये दोनों को ऐड करेंगे, शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को ऐड करेंगे और यहाँ पे से लेस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मिसलेनियस expenses, miscellaneous expenses and losses, या फिर we also call it as fictitious assets। We call it as fictitious assets, fictitious assets and losses। क्या बोलते हैं हम इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी बोल सकते हैं या फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्टिशियस एसेट? द वर्ड फिक्टिशियस मीन्स इमेजिनरी, इमेजिन करना, अनरियल, इमेजिनरी। मतलब फिक्टिशियस का मीनिंग होता है इमेजिन करना, इमेजिनरी या नॉट रियल, अनरियल। मतलब ये इसको हम असेट्स तो बोलते हैं बट दे आर नॉट असेट्स, दे आर लॉसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसका क्या एग्जाम्पल्स है मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का? इसका एग्जाम्पल है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन ये तो ऊपर भी लिखा, तो ये क्या है? डेबिट बैलेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट बैलेंस? अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी असेट साइड में दिखाया तो इट इज नोन एज नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी असेट साइड में दिखाते हैं या डेबिट बैलेंस बोलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस, नेट लॉस। नेट लॉस कैसे असेट हो सकता है? तो इट इज नॉट अ असेट, वी इमेजिन इट टू बी अ असेट, सो इट इज नोन एज डेबिट बैलेंस, इट इज नेट लॉस। तो हम लोग ये लॉस को माइनस करते हैं। और क्या एग्जाम्पल है फिक्टिशियस एसेट का? इसका और एग्जाम्पल है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर को इशू करते वक्त हमें एक्सपेंसेस होता है तो उसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। फिर और क्या हो सकता है? डिबेंचर इशू एक्सपेंसेस, डिबेंचर इशू करते वक्त होने वाला एक्सपेंस। फिर क्या है?
Next one is what we call as preliminary expenses. Preliminary expenses. और क्या एग्जाम्पल है? अंडर राइटिंग, अंडर रिटन commission. Who is the underwriter? SP students will know this. Who is the underwriter? Underwriter is a person who guarantees कि वो minimum share sell करके देगा कंपनी को. तो he will not do this sale for free of cost. He will charge commission. That commission is known as underwriter's commission or underwritten commission. ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, तो इसको हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं. तुम लोग पूछोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस. प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसको बोलते हैं? कंपनी फॉर्म होते वक्त जो हम रजिस्ट्रेशन का सब खर्चा होता है हमें, उसे हम बोलते हैं कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ fictitious asset. yes, या फिर बोल सकते हैं miscellaneous expenses and losses. These are all examples of फिक्टिशियस असेट. तो तुम लोग को ये याद करना है, मैं तुम लोग को ये सब लिखा के दे रही हूँ बिकॉज एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है. मल्टीपल चॉइस है तो ऑप्शन तो रहेगा, लेकिन यू शुड ऑल्सो डू अ रीडिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज दिस. तो आपको ये समझ के याद करना है सो दैट यू whenever you get एग्जाम में क्वेश्चंस ऑन दिस you will be able to understand. अभी क्वेश्चन आया, following is our examples of following is not a fictitious asset. तो यहाँ पे ये सब चीज fictitious asset है. इसके अलावा शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल तो fictitious asset नहीं है, तो हम लोग उसको मार्क करेंगे. तो हमें अगर बोला जाए विच इज अ फिक्टिशियस एसेट और उसमें दिया जाए इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जनरल रिजर्व, तो आप किसको फिक्टिशियस एसेट बोलोगे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को. तो ऐसे सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं. तो इसके लिए आपको क्या अच्छे से आना चाहिए? फॉर्मेट को याद करना है. तो ये हमने क्या बोला गया है? फिक्टिशियस एसेट को हम लेस करते हैं, तो फिक्टिशियस एसेट को लेस करेंगे तो हमें मिलेगा what will we get? We will get the owned fund or the shareholders fund. हमें क्या मिला लास्ट कॉलम में? शेयर होल्डर्स फंड में. फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. शेयर होल्डर्स फंड में हम क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल लिखते हैं, उसका टोटल इधर लिखा, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखते हैं एंड वी लेस द फिक्टिशियस एसेट और द मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इसको लेस करने के बाद हमें मिलता है शेयर होल्डर्स फंड. नाउ after shareholders fund, what do we have? कैपिटल बी जिसको हम बोलते हैं कैपिटल बी, विच इज नोन एज बोरोड फंड. बोरोड, इसको हम लोग बोलते हैं बोरोड फंड, बोरोड फंड्स, या फिर बोल सकते हैं ओड फंड, या फिर बोल सकते हैं लोन फंड, या फिर क्या बोल सकते हैं? वी कैन टेल इट एज लोन फंड, लोन फंड्स. तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें एवरीथिंग विल कम which has been, मतलब शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस सब ओनर्स का खुद का पैसा है. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फंड चाहिए एंड हम फंड शेयर होल्डर से जमा कर सकते हैं या हम बोरो कर सकते हैं. तो बोरो करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ लोन्स. वन इज नोन एज सिक्योर लोन्स, second one is known as unsecured loans.
हम लोन जब लेंगे तो हम लोग दो तरह का लोन ले सकते हैं. वन इज नोन एज सिक्योर्ड लोन्स विच इज सिक्योर्ड अगेंस्ट अ असेट, मतलब कुछ असेट को गिरवी रख के हमने लोन लिया है पब्लिक से, बैंक से, किससे भी. एंड सेकेंड वन इज unsecured loan. So unsecured loans are those loans which are not secured by any asset, which is taken without any security. तो सिक्योर लोन को हम लॉन्ग टर्म लोन्स भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी बोल सकते हैं. तो इसमें क्या क्या लिख सकते हैं हम? इसमें हम लिख सकते हैं डिबेंचर्स, फिर क्या लिख सकते हैं? बॉन्ड्स, फिर क्या लिख सकते हैं? लोन फ्रॉम बैंक्स, फिर क्या लिख सकते हैं? लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इंस्टीट्यूशन. आपको यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लिखने का जरूरत नहीं है. या क्वेश्चन सी सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है. विच आर सिक्योर्ड लोन्स दैट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन. नो creditor is not, creditor is a short term liability. क्रेडिटर सप्लायर को, ये सब कौन सा लोन है? ये सब वो लोन है जो हमने 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए लिया है. बोरोड फंड्स आर दोज लाइबिलिटीज, दोज लोन्स which have been taken by the company for a long period of time. Creditors are those loans which are taken for a short period of time. एंड दिस लोन जो अब हम बात कर रहे हैं वो सब लोन्स है जो हमने लंबे समय के लिए जो लोन्स लिया है. अनसिक्योर्ड लोन्स में हम क्या लिख सकते हैं? पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक से डिपॉजिट लिया है बट विदाउट एनी सिक्योरिटी. तो ये सबको जब हम लोग ऐड करेंगे, ये सबको हम कहाँ ऐड करेंगे? सिक्योर लोन क्या क्या है हमारे पास? we have 1 minute डिबेंचर्स. हमारे पास क्या है? डिबेंचर है, बॉन्ड्स है, लोन फ्रॉम बैंक्स है, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, पब्लिक डिपॉजिट्स है. तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 minute. आई विल राइट हियर बिकॉज मोर देन वन थिंग इज देयर. ये कॉलम कौन से कॉलम में लिखा? इट इज ओके बिकॉज आपको पूरा सब नहीं करना है, तो आप यहाँ पे से ध्यान दो क्या चीज आने वाला है, क्या चीज आता है लॉन्ग टर्म लोन में, जस्ट वो चीज ध्यान में रखो. तो इसका टोटल आई राइट हियर इन द लास्ट कॉल, इन द सेकेंड कॉलम. लेट मी राइट इन द सेकेंड कॉलम. ये सिक्योर्ड लोन है और इसके बाद हमारे पास है अनसिक्योर्ड लोन. अनसिक्योर्ड लोन और ये दोनों का टोटल जब हम करेंगे, सिक्योर्ड लोन का और अनसिक्योर्ड लोन का टोटल जब हम करेंगे तब हमें मिलेगा बोरोड फंड. तो अभी हम क्या करेंगे? हमें लिखना है टोटल, व्हाट वी विल राइट? टोटल फंड्स, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स. या तो इसको बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या बोल सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमें कैसे मिलता है? कैपिटल ए शेयर कैपिटल, अपना ओन्ड फंड, और कैपिटल बी बोरोड फंड का टोटल. सीयर ओन्ड फंड का टोटल हमें मिला ये एक्सेट्स, और बोरोड फंड का टोटल ये एक्सेट्स. ये दोनों को
ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा टोटल सोर्सेस ऑफ फंड, या तो इसको बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इतना पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, कहाँ से आया ये पैसा, शेयर होल्डर से आया, एंड हमने कुछ पैसे बोरो किए, तो हमें मिलता है टोटल सोर्सेस ऑफ फंड और कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड। सो ये है हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल, ये है हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल। नाउ वी विल गो टू द असेट साइड, नाउ वी विल गो टू द असेट साइड। सो रोमन 2 इसको बोलेंगे असेट्स, इसको हम लोग बोलेंगे असेट्स। अब असेट्स को ही असेट्स नहीं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, असेट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। असेट्स को क्या बोलना है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, मतलब ऊपर जो पैसे हमें मिले हैं शेयर होल्डर से और बोरो करके, हमें जो ओन्ड फंड और बोरोड फंड मिला है, हमें जो ओनर्स फंड मिला है और जो हमें बोरोड फंड मिला है, उसको हमने कैसे यूज किया, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे चाहिए, वो पैसे हम किससे लेके आते हैं, ओनर से, वो पैसे हम किससे लेके आते हैं, ओनर से। तो नॉर्मल सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सिंगल ओनर होता है, पूरा पैसा वो लेके आता है। इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑल द मनी इज बॉट बाय द पार्टनर्स, एंड अगर पैसा कम पड़ेगा तो दे विल बोरो फ्रॉम आउटसाइडर, या तो जब सिंगल ओनर को पैसा कम पड़ेगा तो ही विल बोरो फ्रॉम बैंक, ही विल बोरो फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सेम वे जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो पैसे आते हैं शेयर होल्डर से, एंड पैसा आता है कहाँ से, एंड पैसा आता है बोरो करके, एंड पैसा आता है बोरो करके। तो किससे बोरो कर सकता है कंपनी, कंपनी बोरो करता है बाय डिबेंचर्स, कंपनी बोरो करता है बाय वे ऑफ बॉन्ड्स, कंपनी बोरो करता है बाय बैंक्स, कंपनी बोरो करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक से। ऑल दिस मनी इज नोन एज सोर्सेस ऑफ फंड। अब ये पैसे को यूज कैसे करना है, ये पैसे को यूज करना है, that usage is known as application of funds, and कंपनी कैसे उस पैसे को यूज करता है, बाय वे ऑफ बाय परचेसिंग फिक्स्ड असेट्स, बाय परचेसिंग फिक्स्ड असेट, बाय परचेसिंग व्हाट, फिक्स्ड असेट्स, बाय परचेसिंग फिक्स्ड असेट्स। फिक्स असेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, आप फिक्स असेट को नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं, आप फिक्स असेट को नॉन करंट असेट भी बोल सकते हैं। सो नॉन करेंट असेट ऑल्सो यू कैन कॉल, जो तुम लोग को समझने में इजी हो, आप फिक्स असेट भी बोल सकते हो, आप नॉन करंट असेट भी बोल सकते हो। नाउ नॉन करंट असेट या फिक्स्ड असेट is of two type, one is known as tangible asset, one is known as tangible asset. Tangible assets are those assets which can be seen, touch and felt. Can you give example of tangible asset? जो हमारे पास लंबे समय के लिए asset होता है उसको हम बोलते हैं tangible asset। tangible asset में क्या आता है, land and building, plant and machinery, furniture, vehicle. These are all examples of what you say tangible fixed asset. These are all examples of tangible fixed asset. Tangible fixed asset. So ये सब एग्जाम्पल किसका है, टैंजिबल फिक्स एसेट का।
सो टैंजिबल फिक्स एसेट में क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। टैंजिबल फिक्स एसेट में हमेशा डेप्रीसिएशन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, और अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही, और इसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे टैंजिबल फिक्स एसेट या टैंजिबल एसेट। और नेक्स्ट कैटेगरी इज नोन एज intangible asset. Next category is known as intangible asset. तो intangible asset में क्या आता है, can anyone tell me? Intangible are those asset which we cannot see, touch, but we can only feel it. That is known as goodwill, reputation of the company, patent. Patent is the invention rights. Then we have copyrights, trademarks, copyrights. Then we have trademarks and designs. So these are copyrights are all like literature, poems, writings, जिसमें हमें कॉपीराइट्स लेना पड़ता है. दिस ऑल्सो आर इंटेंजिबल फिक्स एसेट. ये सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा व्हाट यू ये सबका टोटल में हमें मिलेगा व्हाट यू कॉल फिक्स असेट. ये सबके टोटल को हम बोलेंगे फिक्स असेट. इसके टोटल को हम बोलेंगे फिक्स असेट. तो बी आफ्टर फिक्स असेट व्हाट वी हैव, आफ्टर फिक्स असेट वी हैव करंट सॉरी यहाँ पे ये टॉपिक में फिक्स असेट के बाद एक और चीज हम लोग लिखते हैं दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. फिक्स असेट में एक और चीज लिखते हैं लॉन्ग टर्म और ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है, जो हम लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं. व्हाट आर दीज इन्वेस्टमेंट, इसका एग्जाम्पल है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, these are example of long term investment. Government securities, shares, debentures, etc. ये है एग्जाम्पल. फिर इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, कुछ इन्वेस्टमेंट हमने किया है. इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल और कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में दिया है तो इट इज इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं और डायरेक्टली वी विल राइट इन द टोटल लास्ट कॉलम. ये हो गया इन्वेस्टमेंट. नाउ लास्ट वन इन द असेट साइड इज नोन एज वर्किंग कैपिटल. Now what do you mean by working capital? कंपनी को जो डे टू डे वर्किंग के लिए पैसा चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी. नाउ हम लोग ने करंट असेट को अच्छे से समझने के लिए उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है विच इज नोन एज क्विक असेट्स एंड नॉन क्विक असेट्स. नाउ क्विक असेट में क्या आता है, क्विक असेट आर दोज करंट असेट्स विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. सो हमारे पास यहाँ पे क्या कैश
जिसको इजीली कन्वर्ट कर सकते, तो कैश एंड बैंक बैलेंस को तो सबसे पहले लेना पड़ेगा. करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर विद द बिजनेस फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम. तो करंट असेट को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, क्विक असेट एंड नॉन क्विक असेट. तो क्विक असेट में क्या आता है, कैश बैंक आता है, डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है. इसको सबको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड advances, accrued outstanding income, short term इन्वेस्टमेंट. मतलब सारे करंट असेट मैंने लिख लिया, बट अभी भी तुम लोग को लग रहा है कौन सा असेट मिसिंग है जो मैंने अभी तक लिखा नहीं है इधर. क्या जिस भी असेट को हम बिल्स पेएबल इज अ असेट और अ लाइबिलिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट असेट. तो ये सबका, ये दीज आर ऑल क्विक असेट. अब क्विक असेट में हमें क्या करना है, इधर लिखा क्विक असेट का टोटल. अब हम लोग को एक और चीज चाहिए, दैट इज नोन एज, यहाँ पे मैंने एक और इसको हेडिंग डाल देती हूँ, here non क्विक assets. नॉन क्विक असेट. तो नॉन क्विक असेट में क्या आता है, नॉन क्विक असेट में आता है स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. और क्या आता है, मतलब ये नॉन क्विक असेट क्या है, नॉन क्विक assets are those assets which cannot be easily converted into cash. आप क्या, इन्वेंट्री मतलब क्या, हम जो गुड्स में बिजनेस करते, बताओ हम जबरदस्ती किसी को अपना गुड्स सेल कर सकते हैं, कैन वी फोर्सफुली सेल आवर गुड्स टू एनीवन. तो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके लिए हमें सेल्स करना पड़ेगा. अगर इतना इजी होता गुड्स को बेचना तो हर कोई बिजनेस करता. तो गुड्स को सेल करना, गुड्स को कैश में कन्वर्ट करना इज नॉट वेरी इजी. तो इसके लिए नॉन क्विक असेट में हम लोग दिखाते हैं स्टॉक. स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंट्री. एंड उसके अलावा आता है प्रीपेमेंट्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेमेंट्स. प्रीपेमेंट्स मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस. क्या आएगा यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने एडवांस में सब खर्चा पे किया है. एक बार आप किसी को खर्चा दे दो तो उसके बाद आप अगर बोलो कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, आपने सपोज 2 महीने का रेंट एडवांस में पे किया, अभी आप बोलते हो कि आई वॉन्ट माई मनी बैक, आई डोंट वॉन्ट टू लिव इन दिस प्लेस, गिव माई मनी बैक, तो आपको वो पैसा वापस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट. दैट पर्सन विल से नो, आपने एडवांस लिया है, अभी आपको रहो मत रहो, मैं आपको आपका पैसा वापस नहीं देने वाला, बिकॉज यू ऑलरेडी पेड द अमाउंट. तो एक बार हम लोग जब एडवांस में पैसा पे करते हैं तो वो पैसा हमें वापस मिलना इज वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा. सो प्रीपेमेंट्स, वन मोर प्रीपेमेंट इज एडवांस टैक्स. Advance tax is the advance of tax given to the government. गवर्नमेंट को जब हम एडवांस में टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट में तो पैसा एक बार अटक गया तो मिलना बहुत डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है. एडवांस टैक्स भी प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांस में टैक्स पे कर दिया. अगर या फिर आपने कोई एडवांस में गुड्स खरीदा, एडवांस फॉर गुड्स, आपने एडवांस में पैसा दे दिया, तो ये पैसा वापस मिलना
इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं, क्विक असेट को और नॉन क्विक असेट को ऐड करते हैं, तो हमें मिलता है करंट असेट। हमें क्या मिलता है? करंट असेट। अभी करंट असेट में से हमें क्या करना है? वर्किंग कैपिटल कभी मिलेगा जब करंट असेट में से हम लेस करेंगे दी करंट लाइबिलिटी। क्या लेस करेंगे? करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है? करंट लाइबिलिटीज को भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। एक को बोलते हैं क्विक लाइबिलिटी और दूसरे को बोलते हैं नॉन क्विक लाइबिलिटीज। सो क्विक लाइबिलिटीज में क्या आता है? क्विक लाइबिलिटीज में सारे लाइबिलिटीज आते हैं एक्सेप्ट वन। सो क्विक लाइबिलिटीज में आएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हो गया, एडवांसेस पेड नहीं, एडवांसेस रिसीव्ड हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमें पे करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कुछ भी आया तो इट इज ऑल क्विक। शॉर्ट टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, ऑल आर एग्जाम्पल्स। मतलब जितना भी करंट लाइबिलिटी है हमने सारा लिख लिया, इज नोन एज क्विक करंट लाइबिलिटी। तो क्विक मीन्स वी कैन इजीली, इट इज इजी टू कन्वर्ट इट, इजी टू पे इट। मतलब देखा जाए तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। तो क्विक लाइबिलिटी, इसमें हम क्या करेंगे? और एक चीज ऐड करेंगे, दैट इज नोन एज नॉन क्विक लाइबिलिटी। नॉन क्विक लाइबिलिटी, नॉन क्विक लाइबिलिटी में बस एक ही चीज आता है जो तुम लोग को याद रखना है, दिस कैन कम इन द ऑब्जेक्टिव। नॉन क्विक लाइबिलिटी में क्या आता है? नॉन क्विक लाइबिलिटी में ओनली वन थिंग कम्स, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक स्पेसिफिक पीरियड में ही हम पे कर सकते हैं। सो बैंक ओवरड्राफ्ट इज नोन एज नॉन क्विक लाइबिलिटी। नॉन क्विक लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज आता है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। अभी ये दोनों का टोटल लिखेंगे तो हमें मिलेगा, ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं टोटल करंट, टोटल करंट असेट्स। ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए। और अभी हमने जो टोटल किया ये है टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटीज, ये है स्मॉल बी। तो अभी हमें क्या चाहिए? नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल कैसे मिलता है? हमने वर्किंग कैपिटल का चैप्टर किया है। करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इस वर्किंग कैपिटल, जो कि हम लास्ट कॉलम में लिख रहे हैं, लास्ट कॉलम में लिख रहे हैं वर्किंग कैपिटल। तो अभी हम लोग लास्ट में लिखेंगे टोटल असेट्स और टोटल, टोटल एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशंस, या फिर हम लोग बोलेंगे टोटल फंड्स यूज, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, या फिर बोलेंगे कैपिटल
एम्प्लॉयड या यूज्ड। हमेशा आप ध्यान दोगे तो आपको समझेगा। 1 मिनट, ये मुझे यहाँ नहीं लिखना था, इसको मैं कट कर रही हूँ एक और लेके। 1 मिनट, इधर आई विल शो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स और कैपिटल एम्प्लॉयड और यूज्ड। इसको बोलेंगे ऐसे, एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोल सकते हैं, या तो इसको 3 तरीके से बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोल सकते हैं, या फंड्स यूज्ड बोल सकते हैं, या कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकते हैं। ये कैसे आता है? ये मिलता है हमें ए प्लस बी प्लस सी करने से। अब ये ए बी सी क्या है बताती हूँ। ए मीन्स फिक्स एसेट। हम पैसा किधर किधर यूज करते हैं? फिक्स एसेट में यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं, और वर्किंग कैपिटल में यूज करते हैं। जो ऊपर हमें पैसा मिला है शेयर कैपिटल से और बोरोइंग से, ऊपर जो हमें पैसा मिला है शेयर होल्डर से और बोरोइंग करके, उसको कहाँ यूज करते हैं? फिक्स एसेट में यूज करते हैं, फिक्स एसेट परचेज करने में, इन्वेस्टमेंट परचेज करने में, और वर्किंग कैपिटल परचेज करने में यूज करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं टोटल एप्लीकेशन। अप्लाई करना, यूज करना, फंड को यूज करना, फंड्स यूज और कैपिटल एम्प्लॉय, ए प्लस बी प्लस सी। और ऐसे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ऐसे हम लोग बोलेंगे हमारा बैलेंस शीट क्या हो गया? टैली हो गया। तो अगर हमें शॉर्ट में देखना है इधर, तो कैसे लिख सकते हैं? ओन्ड फंड प्लस लोन फंड, मतलब बोरो फंड, ये हमेशा हम लोग देखेंगे इक्वल टू फिक्स असेट। ये तीनों किससे इक्वल रहता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये हमने इधर शॉर्ट पाव, इसको हमने इधर समराइज किया। ओन्ड फंड प्लस बोरोड फंड इज इक्वल टू, क्योंकि असेट का लाइबिलिटी का टोटल सेम होता है, तो ओन्ड फंड प्लस लोन फंड इज इक्वल टू फिक्स्ड असेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो इसको और कैसे समझ सकते हैं? तो अभी यहाँ पे टोटल हमने यहाँ पे लिया। अगर हमें देखना है सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या है शॉर्ट फॉर्म में, इधर सोर्सेस ऑफ फंड मतलब ओन्ड फंड प्लस लोन फंड। ये दोनों को ऐड करेंगे तो सोर्सेस ऑफ फंड मिलता है। और एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या दो चीज होता है? टैंजिबल प्लस इंटैंजिबल। टैंजिबल एसेट और इंटैंजिबल एसेट, ये दोनों फिक्स एसेट में होता है। फिर प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, फिर प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इस व्हाट ऊपर भी लिखा है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। एक और चीज, करंट असेट में क्या होता है? करंट असेट में दो चीज, करंट असेट इज इक्वल टू क्विक असेट प्लस नॉन क्विक असेट। नॉन सी यहाँ पे
क्विक असेट में तो सारे करंट असेट आ जाते हैं, पर नॉन क्विक असेट में क्या आता है? नॉन क्विक असेट में आता है स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस एडवांस टैक्स प्लस और क्या है? एडवांस ऑन गुड्स, एडवांस फॉर गुड्स, एडवांस फॉर गुड्स। मतलब इन शॉर्ट इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। ये तीनों को हम लोग बोल सकते हैं प्रीपेमेंट्स। प्रीपेमेंट्स एडवांस में जो खर्चा पे करते हैं, एडवांस में जो खर्चा पे कर सकते हैं, दोस आर नॉन क्विक एसेट, बिकॉज उसको हम लोग इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेम वे करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी इक्वल टू व्हाट इज इट? क्विक लाइबिलिटी। क्विक लाइबिलिटी में सारे लाइबिलिटी आ जाते हैं। क्विक लाइबिलिटी प्लस नॉन क्विक लाइबिलिटी। नॉन क्विक लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही चीज आता है, इसको याद किया तो हम लोग सारा याद हो जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ओनली वन नॉन क्विक लाइबिलिटी, रेस्ट ऑल आर क्विक लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। करंट लाइबिलिटी मतलब हमने जो भी कर्जा छोटे कम समय के लिए लिया है। करंट एसेट मतलब हमारे पास जो भी एसेट है विच इज फॉर अ लेस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक डेटर, बिल रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, प्रीपेड, ये सब। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, ये क्या है? नॉन क्विक एसेट है। ये है नॉन क्विक एसेट। तो हम लोग ने ये सब यहाँ पे कर लिया। वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट को, यहाँ पे ऐसे हमने डिस्कस किया। तो जब हम लोग का ये पूरा फॉर्मेट है, दिस इज द फॉर्मेट which you all have to remember। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये फॉर्मेट I will do one thing, I will send this format। इसके बाद एक P&L अकाउंट का भी फॉर्मेट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी ये फॉर्मेट चाहिए तो I will share with you all। इसका फाइल I will share in the group। With this, the explanation for today is over। In the next lecture, we will do the sums on this balance sheet, small sums।